now students we discuss our next lines of symmetry in figure square. This is square, all sides are equal. So now we fold it from vertically. अब vertically fold करते हैं, these two parts look like same, दोनों parts एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. So this is first line of symmetry, clear? Next when we fold from horizontal, तो ये दोनों parts एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. This is second line of symmetry, clear? Both parts lie on each other. Clear? Next we have two lines of symmetry, vertically and horizontally. When we fold it from diagonally, अगर हम इसको diagonally corner से cross इसको fold करते हैं, so then two parts are also look like same. Here, so when we fold it diagonally, its both part also look like same. दोनों parts जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे. Clear? So then it's fold from one diagonal से fold किया. अब इसी तरह दूसरे diagonal से हम fold करते हैं. तो ये हम बच्चे जो है बोर्ड भी बनाते हैं ना इस तरह से स्क्वायर शीट लेके, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पार्ट आता है, तो मीन्स दैट इज़ द सिमेट्री है. तभी हम जो है वो इस तरह से इसको बोर्ड भी बनाते हैं. क्लियर? सो दीज टू पार्ट्स आर आल्सो लुक लाइक सेम. सेकेंड डायगोनल से हमने फोल्ड किया, तो दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. So 1, 2, 3, 4 means a square have how many lines of symmetry? It has 4 lines of symmetry. 1, 2, 3 and next is 4. Clear? Next is rectangle. अब rectangle sheet. This is our rectangle sheet. अब हमारी ये rectangle sheet होगी. Clear? अब rectangle sheet को हम किस तरह से fold करें? If we fold it vertically, अगर हम vertically fold करते हैं, both parts look like same. दोनों parts एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. Here both parts look like same. So it has one line of symmetry vertically. So when we fold it horizontally, so these two parts also look like same. Clear? So this is second line of symmetry. अगर हम इसको diagonally अब लेते हैं, अगर diagonally fold करते हैं, तो क्या ये यहाँ से तो पीछे वाला पार्ट दिख नहीं रहा, लेकिन पीछे ये पार्ट क्या है, स्मॉलर है. So it has two lines of symmetry vertically and horizontally. Clear? So next is rhombus. अब rhombus क्या होता है? Rhombus has all sides are equal. तो square जैसा होता है, but square has each angle 90. rhombus में नहीं होता. So rhombus, this is the rhombus. All sides are of equal length, but angles are different. Clear? Opposite angles equal होते हैं और adjacent angles का sum 180 होता है. Clear? Adjacent angle का sum 180. अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, 60 है 120. So how many line of symmetry है? अगर हम इसको वर्टिकली फोल्ड करते हैं, तो वर्टिकली फोल्ड तो ये आपको विजिबल है, ये तो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर आ ही नहीं रहे हैं. हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हैं तब भी ये जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे. ठीक है? तो इसका फिर हम डायगोनली फोल्ड करते हैं. व्हेन वी फोल्ड इट डायगोनली, सो बोथ पार्ट्स आर लाई ऑन ईच अदर. दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं. क्लियर? So that means it has two lines of symmetry. पहले हमने one diagonal से fold किया, फिर हम दूसरी diagonal से fold करते हैं. So it has two lines of symmetry diagonally. Clear? Diagonally होते हैं, cross में होती हैं. ठीक है? Because its diagonals are perpendicular bisector. Diagonals क्या होते हैं इसके? perpendicular होते हैं दूसरे पर और bisector होते हैं. तभी जो इसकी symmetry है वो diagonally होती है. Clear? Diagonal. This you have rhombus 1, 2. Clear? Cross में आप इस तरह से जो है आप में बर्फी देखते हैं ना इस तरह से, सो उसी टाइप की ये शेप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं. सो इट हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज डायगोनल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट यू हैव पैरेलल. अब पैरेललोग्राम और rhombus क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और rhombus की all sides are equal. Clear? अब you have this parallelogram. अब vertically और horizontally तो इसमें line of symmetry है ही नहीं. वो तो हमने
जो है रोम्बस में भी चेक कर लिया। क्लियर। सो क्या डायगोनल सिमेट्री है, सो वी फोल्ड फ्रॉम इट्स डायगोनल। अब डायगोनल से हम फोल्ड करते हैं। सो डायगोनली हमने फोल्ड किया तब भी ये पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। क्लियर। अब दूसरे डायगोनल से देखो तब भी नहीं आ रहे हैं। क्लियर। ये इस तरह से शेप बन रही है। सो मीन्स दिस पैरेललोग्राम हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट यू हैव क्वाड्रिलेटर, सेम एज इट क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में भी इफ इट इज एनी स्पेशल क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, देन वी फाइंड इट्स lines of symmetry, but this is any quadrilateral, so it has no line of symmetry. सभी साइड डिफरेंट हो सकती हैं। क्लियर। सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज हेक्सागन। अब हेक्सागन क्या होता है, विच हैव 6 sides, 6-sided polygon. Now next this is regular hexagon. It has 6 sides, 1 2 3 4 5 and 6, and all sides are of equal length. तो इनका ये जो एंगल होता है, जब आपने अगर ड्रॉ करना है, सो यू ड्रॉ 1 लेंथ एंड ड्रॉ 120 एंगल। 120 एंगल ड्रॉ करो, 120, फिर इसको इक्वल लेंथ में कट करो, फिर 120 एंगल ड्रॉ करो। सो इस तरह से आपका ये रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ होगा। क्लियर। सो व्हेन वी फोल्ड इट वर्टिकली, दिस इज both part look like same, so it has one line of symmetry. Then we fold it horizontally, फिर second vertex हमने fold किया, this is its second line of symmetry. Clear. both part जो है वो same आएंगे आपके। this is second line of symmetry. next here both part are same. so next when we fold vertically and horizontal होगा, when we fold it from this diagonal, those parts are also look like same, दोनों parts हैं वो same आएंगे। Clear. this is clear, both parts are same. so this is our second line of symmetry. 1 2 3, फिर हम इधर से डायगोनली फोल्ड करते हैं। सो ये भी पार्ट्स हमारे क्या आएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएंगे। क्या, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 2 हमारी इधर बीच में से सेंटर से आएगी, यहाँ से बिल्कुल। क्लियर। सो इन दिस वे यू फाइंड दिस लाइंस ऑफ सिमेट्री। 1 2 3 4 5 and 6. we draw it 1 2 3 4, draw this using your scale properly, और ये सभी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट से पास करेंगी। these are congruent lines and next 4 होगी, एक आपकी क्या आएगी बीच में से बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से सामने वाले को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ से भी बिल्कुल सामने वाले को बाइसेक्ट करेगा। it has 6 lines of symmetry, 1 2 3 4 5 and this is 6। क्लियर। ये वाली तो हमारी ये आगे वापस। ठीक है, सो दिस हैज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज रेगुलर हेक्सागन। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कल। अब सर्कल में भी क्या है, इन्फिनिट। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल हैज इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री। आप कहीं से भी इसको फोल्ड करते हो, यहाँ से फोल्ड किया फर्स्ट, यहाँ से फोल्ड किया, दीज लुक लाइक सेम, क्लोज टू क्लोज आप फोल्ड करते हो बिल्कुल। यहाँ से कहीं से भी आप डायमीटर सेंटर से पास करती लाइन को फोल्ड करते हो। ऑल पार्ट्स आर लुक लाइक सेम। कहीं से भी आप फोल्ड करते हो बट दैट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर, सो दैट मीन्स ऑल डायमीटर्स। सर्कल में क्या होता है, जो सेंटर से लाइन पास करती है दोनों पॉइंट्स
सर्कल पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड diameter. So it means it has infinite many lines of symmetry. इसमें बहुत सारी lines of symmetry होती है. ये हमने 3-4 तो draw कर भी लिए यहाँ पे, ठीक है. So very close to close, it has infinite many lines of symmetry but passes through the center. That means all diameter. In a circle there are many diameters. Close to close भी आपका point क्या होगा? Diameter होगा. Clear? So it has infinite many lines of symmetry. Hope you understand how to find the line of symmetry in different figures. Now do yourself, cut out the figures from craft paper and check how many lines it has. Thank you.